ओके, कहाँ तक हो गई थी बोलो बात। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसी में एक एप्लीकेशन है, देखिए लिखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में एक एप्लीकेशन क्या है बोलिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहले इसकी थियरी लिख लो, फिर उसके बाद इसको समझेंगे। चलिए थियरी डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखिए। लिखिए, एज वी मूव, अच्छा गौर से सुन के लिखो, एज वी मूव टॉप टू बॉटम, okay, as we move top to bottom, d and f electron increases. As we move top to bottom, d and f electron increases. Okay, pore shielding increases, pore shielding increases, z effective increases, z effective increases, attraction on outermost electron, attraction on outermost electron increases, attraction on outermost electron लिखिए increases। ये पहला पॉइंट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेस, पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेस। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए, s electron are near to nucleus, s electron are near to nucleus as compared to p electron, s electrons are near to nucleus as compared to p electron. So after removal of p electron, so after removal of p electron, attraction on s electron, attraction on s electron, so after removal of p electron, attraction on s electron abnormally increases, so attraction on s electron abnormally increases। कौन सा पॉइंट हो गया बोलो ये, थर्ड पॉइंट। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखिए, ऐसे लिखो, आसान है ये समझना, थोड़ी थियरी लंबी हो जाती। नेक्स्ट लिखिए, सो पार्टिसिपेशन ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट है ये। ओके, सो पार्टिसिपेशन ऑफ s electron in bond formation decreases, so participation of s electron in bond formation decreases, inertness of s electron, inertness of s electron increases, inertness of s electron increases। उसी में कंटिन्यू करो, फॉर्मेशन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद में ब्रैकेट ओपन करके लिखिए ns इलेक्ट्रॉन प्लस np इलेक्ट्रॉन, ऐसा फॉर्मेशन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद में ब्रैकेट ओपन करके क्या लिखिए, ns इलेक्ट्रॉन प्लस np इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आता आपका, नेगेटिव। ओके, क्या हो रहा बोलो, फॉर्मेशन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में ns प्लस np इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ब्रैकेट क्लोज, डिक्रीजेस, एंड फॉर्मेशन ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी में कंटिन्यू, एंड फॉर्मेशन ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे, एंड फॉर्मेशन ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे, और उसमें लिख के लिखो np इलेक्ट्रॉन, मतलब ब्रैकेट ओपन करके क्या लिखो, np इलेक्ट्रॉन, खाली ये लिखो np इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट क्लोज कर दे के लिखो इंक्रीजेस। कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट हो गए। चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखिए, इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन,
towards bond formation, inertness of s electron towards bond formation is called inert pair. Bond formation, inertness of s electron towards bond formation is called, बोलिए क्या बोलेंगे, inert pair. Due to inert pair, stability of lower oxidation state, due to inert pair, stability of lower oxidation state increases. Due to inert pair, stability of lower oxidation state, बोलिए, increases, and stability of higher oxidation state decreases. And stability of higher oxidation state decreases. This is known as inert pair effect. This is known as inert pair effect. Inert pair effect हेडिंग वो है ना हमारी. चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखिए, 6th पॉइंट. दिस effect is only applicable in 6th period. This effect is only applicable in कौन सा पीरियड, 6th period. ओके एक बार पढ़ देता हूँ, थियरी पूरी क्रॉस चेक कर लो. ओके पढ़ रहा हूँ फिर शुरू से देख लो. एज वी मूव टॉप टू बॉटम, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, पोर शील्डिंग इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस. ओके अट्रैक्शन ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन increases, participation of electron in bond formation decreases, s electron are near to nucleus as compared to p electron, so after removal of p electron, attraction on s electron abnormally increases, so participation of s electron in bond formation decreases, inertness of s electron increases, formation of higher oxidation state, ns electron plus np electron decreases, and formation of lower oxidation state, np electron increases. Inertness of s electron towards bond formation is called inert pair. Due to inert pair, stability of lower oxidation state increases and stability of higher oxidation state decreases. This is known as inert pair effect. This effect is only applicable in 6th period. यहाँ तक लिखे ना, लिखे. चलिए ये क्या हो गई, बोलिए आपकी थियरी हो गई. अब इसको अप्लाई करके देखेंगे. चलो समझो, यहाँ से क्या समझो, इनर्ट पेयर इफेक्ट. वो समझने से पहले कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता. तो ये कौन सा ग्रुप है, बोलो ग्रुप 13. इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोलिए NS2 NP1. इसका क्या है, बोलिए NS2 NP2. और ग्रुप 15 का क्या है, बोलिए NS2 NP3. अब मैं वहां जाने से पहले जनरल बात करना चाह रहा हूं, गौर से देखो. इन्हें या तो P में का एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता या फिर P और S निकाल सकता का मतलब निकाल सकते आप, या फिर P और S दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं आप, रिमूव कर सकते ना, कर सकते. सीधा बैठ भाई. ओके या तो P का एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते आप, या फिर P और S दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते. अगर P का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना तो क्या आता, बोलो +1. अगर P और S दोनों के इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए ना तो क्या आता, बोलो +3. आगे बात समझ में, या तो P का एक निकाल दो या P के, क्योंकि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालते तो कौन सा चार्ज आता, बोलो पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे भी देखो दो पॉसिबिलिटीज है नहीं है, या तो P के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो क्या आता, बोलो +2, या पूरे ही निकाल दो 4 तो क्या हो जाता, बोलो +4. ओके यहाँ पे भी 2 है नहीं है, क्या है, बोलो +3, या तो P के 3 निकालो या फिर पूरे ही निकाल दो +5. आ गया. अब चलो समझो, ये जो +1 है ना, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है. क्या है, बोलो लोअर ऑक्सीडेशन. +3 +1 में कौन लो है, और ये क्या है, बोलो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट. आ गया समझ में आपको. अब हाई लो इस्तेमाल करें तो क्या रहता, मतलब ये क्या है, बोलो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या है, बोलिए हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट. ये क्या है, बोलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या है, बोलिए हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट. ये हो गए,
ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी हुई। अब देखो जो हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये कौन से उसमें एप्लीकेबल है बोले हम, सिक्स्थ पीरियड में एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पे है हमारे ये एलिमेंट्स है, ये सिक्स्थ पीरियड के इन एलिमेंट्स में ये एप्लीकेबल है। ओके, तो वो कैसे एप्लीकेबल है वो समझने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक पे समझाता हूँ, बाकी के दोनों दूसरे तीसरे पे आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पे ये बोरॉन है ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके +1 में जा सकता, या 3 के 3 रिलीज करके कहाँ जा सकता बोलो, +3। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम या तो एक रिलीज करके +1 या 3 के 3 रिलीज करके +3, एक रिलीज करके आ रहा समझ में +1। तुम यहाँ नहीं देखना, 3D नहीं देखना, ये तो 3D तो इनर शेल है, फिर कहाँ से रिलीज कर सकता बोलो, S से। अरे पहले आउटर शेल से रिलीज करते, फिर उसके बाद किधर के शेल से रिलीज करते, इनर शेल से रिलीज करते नहीं करते। एक चीज बारीक चीज तुम लोग को बताता हूँ, ये जो तुम अफबाउ प्रिंसिपल लिखते ना, फिलिंग करते वक्त लिखना ऐसा, एक बार फिल कर देते ना, उसके बाद 3D को 3D की जगह पे खींच देना। 3D कहाँ पे रहता बोलो, 4s के अंदर, वो डी ब्लॉक में बताएंगे। या तो +1 एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, या फिर 2 + 1 आउटर मोस्ट के 3 के 3 रिलीज कर दे, तो क्या बनता बोलो, +3। यहाँ पे भी क्या बोलो, +1 +3, यहाँ पे भी क्या क्या है बोलो, +1 और साथ में क्या आ सकता बोलो, +3। आने दो, कोई मसला नहीं है। आगे बात इतनी समझ में, अब जरा समझो, अब गौर से देखो। जैसे ही ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट, जैसे ही आप ये सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट्स में से p इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट के p इलेक्ट्रॉन, अरे p पहले p में से निकालेंगे, p में से ही एक इलेक्ट्रॉन निकाले, जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बोलो, निकाल दिए, बोलो f और d की शील्डिंग कैसी है बोलो, अरे पूर है या स्ट्रांग है, पूर शील्डिंग है। इनकी पूर शील्डिंग है, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता बोलो, अरे बढ़ता नहीं बढ़ता, पूर शील्डिंग है, इतना शील्डिज नहीं कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाता बोलो, बढ़ जा। अब इनकी वजह से, पूर शील्डिंग की वजह से अट्रैक्शन बढ़ रहा, तो किस पे बढ़ता, ये s के इलेक्ट्रॉन पे। किस पे बढ़ता बोलो, s के, क्योंकि अब ये s का इलेक्ट्रॉन क्या है बन गया बोलो, आपका आउटर मोस्ट बन गया, नहीं बन गया। कहीं को बोलते कि आप एक p का निकाल दिए ना, p का निकाले बाद आप कहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, 6s, लेकिन 6s का निकालने जा रहे हैं आप, जैसे ही p का निकाले क्या हो गया, पूरी शील्डिंग थी और अट्रैक्शन बढ़ गया। अब अट्रैक्शन बढ़ते कि ये s का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फुल लग रहा, नहीं लग रहा, अब अट्रैक्शन फुल लग रहा, तो अब ये अट्रैक्शन फुल लग रहा, तो ये s का इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता क्या, अरे s का इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता क्या, नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि उस पर अट्रैक्शन क्या लग रहा बोलो, ज्यादा लग रहा। अब देखो, जब कभी भी कोई भी चीज बॉन्ड बनाती ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता और क्या करना पड़ता बोलो, एक्सेप्ट करना पड़ता। अब देखो कोई चीज बॉन्ड नहीं बना रही, कोई चीज रिएक्ट नहीं कर रही, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में इनर्ट बन जाना। क्या बन जाना बोलो, इनर्ट बन जाना। यानी कोई चीज क्या नहीं कर रही बोलो, इलेक्ट्रॉन दे रही नहीं और क्या नहीं कर रही, रिएक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब उन्हें क्या बन गई बोलो, इनर्ट बन गई। अब देखो जैसे ही आप ये सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट से p में का एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये s पे क्या हो गया बोलो, एबनॉर्मली अट्रैक्शन क्या हो गया बोलो, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इनकी पूर शील्डिंग थी, अट्रैक्शन बढ़ गया। एबनॉर्मली अट्रैक्शन बढ़ते ही ये, अब ये s का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता क्या, अरे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करने का मतलब समझ में आया नहीं आया, क्या इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाता क्या, नहीं। क्यों नहीं डोनेट कर रहा, क्योंकि इस पर अट्रैक्शन क्या हो गया बोलो, बढ़ गया। तो इसका मतलब यह है कि इन्हें आप बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मतलब इसका इनर्टनेस बढ़ गया। अरे बॉन्ड नहीं बनाने कुछ क्या बोले बोलो हम, इनर्टनेस। तो ये इनर्टनेस क्यों बढ़ा, जैसे ही आप यहां से p का एक इलेक्ट्रॉन निकाले, इनकी पूर्ण शील्डिंग की वजह से इस पे क्या हो गया बोलो, अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ने से इन्हें बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करने को आप इनर्ट बोले, तो s के इलेक्ट्रॉन की इनर्टनेस क्या हो गई बोलो, बढ़ गई नहीं बढ़ गई। तो अब बोलो s के इलेक्ट्रॉन की इनर्टनेस बढ़ गई, तो अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाते या s में रहते, s में रहते, क्योंकि अट्रैक्शन क्या हो गया बोलो, बढ़ गया। इसको बोलते हैं आप इनर्ट पेयर। इतनी चीज कुछ क्या बोलते बोलो आप, इनर्ट पेयर। इफेक्ट आया क्या, क्या अब यहाँ पे इफेक्ट का टर्म लगाया क्या अपन, इनर्ट पेयर का मतलब ये छे कि आफ्टर रिमूवल ऑफ p इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ऑन s इलेक्ट्रॉन एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाना। इसका मतलब क्या है बोलो, इनर्ट पेयर। इनर्ट क्या हो गया, इनर्ट हो, s के इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो गए, पेयर में है नहीं है, ओके। s के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए बोलो, इनर्ट हो गए, किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि इन पे पूर्ण शील्डिंग की वजह से अट्रैक्शन क्या हो गया बोलो, बढ़ गया। इसका इतने लफ्ज का मतलब इनर्ट पेयर है। इफेक्ट अभी ये इनर्ट पेयर होने से क्या इफेक्ट होता देखेंगे, लेकिन आपको इनर्ट पेयर समझ में आ गया नहीं आ गया। अभी एक देखो यहाँ पे एग्जांपल में देखो, जैसे ही आप यहाँ पे p में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या इनकी पूर्ण शील्डिंग से अट्रैक्शन बढ़ गया और ये s का इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया नहीं हो गया, किसके लिए बोलिए, केमिकल
बॉन्ड बनाने के लिए। सेम वैसे यहां से p के 3 इलेक्ट्रॉन निकालते कि ये s का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बोलो, इनर्ट हो गया। मतलब इस पे अभी ने किसी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या नहीं बना रहा, बॉन्ड नहीं बना रहा, मतलब क्या हो गया बोलिए, इनर्ट हो गया, नहीं हो गया। तो अब इसके इनर्ट होने से क्या इफेक्ट आता, उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। आ गया समझ में? इनर्ट पेयर अलग चीज, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इन्हें इनर्ट हो गया तो क्या इफेक्ट आ रहा, इन्हें इनर्ट होने से क्या इफेक्ट आ रहा, उसको क्या बोलते बोलो आप, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आ गया? तो देखो इन्हें जब इनर्ट हो गया तो इन्हें रिलीज हो रहा क्या, अरे जब इन्हें इनर्ट हो गया तो बाहर जा रहा क्या, रिएक्ट कर रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा मतलब रिलीज नहीं हो सकता, रिलीज नहीं हो रहा मतलब इसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकता तुम्हारे को, +1 या +3, +1। कई को तो खाली तुम पी में का एक ही निकाल सक रहे हैं, क्या ये इसके 2 निकाल सक रहे हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं निकाल सक रहे हैं, इनर्टनेस बने। तो देखो इनर्टनेस की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो गया, नहीं हो गया, इनर्टनेस की वजह से क्या स्टेबल हो गया बोलो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो गया, ये है इफेक्ट। इसके इनर्ट होने से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बोलो, स्टेबल। ये क्या है बोलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो यहां पे वैसा लग रहा क्या कुछ तो मतलब इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोलो, स्टेबल। यहां पे भी इसका हायर ऑक्सीड, यहां पे भी इसका हायर, यहां पे भी इसका हायर, लेकिन सिर्फ यहां पे इसका क्या हुआ बोलो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हुआ। क्यों? ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन। इसी को आप क्या बोले बोलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर का मतलब समझ में आया नहीं आया? इनर्ट पेयर का मतलब s इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड में क्या केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करना, इनर्ट हो जाना। इनके इनर्ट होने से क्या हुआ, इनके इनर्ट होने से ये हुआ कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो गई और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो गई बोलो, ज्यादा। अब मैं जो जिनको इनसर्कल कर रहा हूं ना उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब यहां पे बोलो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है बोलो, +2 +4, यहां पे बोलो +2 +4, यहां पे बोलो +2 +4, चलो जल्दी जल्दी बोलो, +2 +4, यहां पे +2 +4, चलो अब जल्दी बोलो, +2 +4 में कौन ज्यादा, +4 हायर ऑक्सीडेशन, कौन बोलो, यहाँ पे यहाँ पे +2। आ गया समझ में? यहाँ पे भी कर लो वैसे, यहाँ पे क्या क्या आता बोलो, +3 +5, यहाँ पे क्या क्या आता बोलो, +3 +5, यहाँ पे क्या आता बोलिए, +3 +5, यहाँ पे क्या आता बोलिए, +3 +5, यहाँ पे क्या आता बोलिए, +3 +5। कौन स्टेबल है, +5 +5 +5 +5 +3। तो आपको इनर्ट पेयर और इनर्ट पेयर इफेक्ट में डिफरेंस करना आया नहीं आया? इनर्ट पेयर का मतलब क्या है बोलो, कि इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ, ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीज इन अट्रैक्शन और ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इन्हें रिएक्ट करने से क्या हो गया, इन्हें रिएक्ट नहीं करने से क्या हुआ बोले तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो गई बोलो, बढ़ गई, किसके रिस्पेक्ट में, हायर। तो ये इफेक्ट आया इनर्ट पेयर से। आ गई बात? अब आपको ऐसे क्वेश्चन कई सारे मिलते हैं, ऐसे कई सारे लिख के मिलते हैं, Pb+4 Pb+2 कौन ज्यादा स्टेबल बोलो, Pb+4 और Pb+2 में कौन ज्यादा स्टेबल, +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या रहता बोलो, ज्यादा स्टेबल। अगर ये क्वेश्चन वहां पे लिख के दे दिया आपको Bi, साथ में क्या लिख के दे दिए, +3, और क्या लिख के दे दिए, Bi+5, कौन ज्यादा स्टेबल। ऐसा स्टेबिलिटी ऑर्डर के कई सारे PYQs मिल जाएंगे आपको। तो आपको समझ में आया नहीं आया, इनर्ट पेयर समझ में आ गया, इनर्ट पेयर से इफेक्ट क्या आया वो भी समझ में आ गया नहीं आया। इफेक्ट क्या है बोलो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो गई बोलो, बढ़ गई। अब देखो एक बार थियरी पढ़ता हूं मैं, आप उस थियरी को मैच करके देखो, जो समझाया हूं उससे मैच करो, फिर आपको ये पूरा समझ में आ जाता। फिर से एक बार मैं थियरी पढ़ रहा हूं, अब जहन में मैच करते हुए चलो। एज वी मूव टॉप टू बॉटम, D and F इलेक्ट्रॉन increases, pore shielding increases, Z effective increases, attraction on outermost electron increases, participation of electron in bond formation decreases, क्योंकि attraction बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। फिर क्या पढ़े, S electron are near to nucleus as compared to p electron, so after removal of p electron attraction on s electron abnormally increases, क्योंकि s electron न्यूक्लियस के क्या है बोलो, करीब, तो उस पर अट्रैक्शन क्या हो गया बोलो, ज्यादा बढ़ गया। so participation of s electron in bond formation decreases, inertness of s electron क्या हो गया बोलो, increase, inertness of s electron समझे नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट देखो, formation of higher oxidation state यानी ns-np electron decreases and formation of lower oxidation state क्या हो रहा बोलो, increases. Inertness of s electron toward bond formation is called inert pair. Due to inert pair, stability of lower oxidation state increases and stability of higher oxidation state decreases. This is known as inert pair effect.
दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनर्ट पेयर अलग है, उससे इफेक्ट आने वाला भी अलग है। दिस इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल इन 6th पीरियड। आ गई बात, आ गया समझ में इनर्ट पेयर? अब ये पूरा कॉपी कर लो, आप लोगों का कॉपी करो, बस यही है, क्या बोलिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी।